As we are about to start with our second technical session in a session, I request Shri C.A. Sridhar Shah, Committee Member ITBA, and Advocate Shantilal Thakkar, Vice President AGFTC, to escort Advocate Jignesh Bhagat, Joint Secretary AGFTC, Advocate Ramesh Trivedi, Joint Secretary AGFTC, Advocate Rakesh Thakkar, co-opted member of AGFTC, along with our respected speaker, C.A. Jatin Christopher sir, on the dais. We are pleased to have with us C.A. Jatin Christopher sir. Mr. Jatin Christopher is a chartered accountant, cost accountant, and a law graduate. He qualified in 1996 and specializes in indirect tax laws. He is a resource person for the Institute in various post-qualification programs on indirect taxation and extends support to ICAI in publication of educational and research material by ICAI on various indirect tax topics. He is also a resource person for the government in conducting training for practitioners, trade and officers. He has been in practice since 2000 as a partner in JCSS, a full-service firm with presence across India. I request C.A. Sridhar Shah, Committee Member ITBA, to welcome C.A. Jatin Christopher with a book. And I also request Advocate Shantilal Thakkar, Vice President AGS, to present our speaker with a memento. Thank you, sir. The second technical session on GST and taxpayer responses is by C.A. Jatin Christopher, sir. He is a celebrated orator in business circles as well as in CA study circles and has conducted breakthrough seminars for business owners in India. He has conducted over 90 sessions for CAs in WIRC in the past 6 years. He spearheaded the business advisory program exclusively for chartered accountants across the central and west zone. He is awarded the Tally Ratna by the maker of Tally, Mr. Bharat Goenka. Let us please welcome with a huge round of applause, T.A. Jatin Christopher. Sir, I invite you for your talk. Good afternoon, friends, and thank you, ma'am, for those generous words of introduction. After that wonderful presentation by Girish sir, nobody can stand a chance to deliver that deep understanding of the law in such a lucid manner. With permission, I will try and attempt to share some aspects relating to notices in GST and how taxpayers need to respond to those notices. When power is given to do a particular thing, that thing must be done in that manner or not at all. Right? Nazir Ahmad versus Emperor in 1936, Privy Council laid down these instructive words. I mean, this is a decision that has stood the test of time since 1936, that a statutory authority who has the power to affect civil rights, to affect tax consequences, they cannot do so in whatever manner they like. Let me start by saying GST has a specific section for every action. Every section has a procedure, every procedure has a format, every format has very limited contents, including limits and boundaries to the taxpayer's authority. But very sad to say, taxpayers have not taken into consideration what is the limits to the power tax authorities have. What can be done under section 61?
cannot be done under section 65. The one who can take action under 67 cannot take action under 64. So we will need to identify specific sections. And I thank all Gujarat Federation of Tax Consultants for having given me this opportunity to come and share some of my thoughts. कभी एक बार ऐसे हुआ कि टैक्स सीए के स्टूडेंट्स, टैक्स कोर्सेज के स्टूडेंट्स एक जगह पे क्लासेस के लिए अटेंड कर रहे थे. बच्चे हमारे जो जीएसटी पढ़ना शुरू कर लिए, दे अंडरस्टैंड द पावर इन द लॉ. तो एक बार ऐसे हुआ कि क्लास ख़त्म हुए, 9:30 बज गया था, तो लड़के घर जा रहे थे. जहाँ पे सेशन चल रहा था वहाँ से थोड़ी दूर के बाद मेन रोड है. तो लड़के जो बाइक थे जिनके पास, वो बाइक में चल दिए. जिनको चल के जाना था बस पकड़ने के लिए, वो डबल्स ट्रिबल्स चढ़ गए बाइक पे. तो वहाँ पे एक ट्रैफिक हवलदार उनको रोका, रुक. जब हम पढ़ रहे थे, पुलिस को देख के डरना आम बात था. आजकल के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे पुलिस ने स्टॉप किया, पूछे उससे कौन सा सेक्शन, रोक लिए, ठीक है, कौन सा सेक्शन, ठीक है तुम जाओ भाई, वहाँ सीईटी वाले आ रहे हैं, उनको पकड़ते हैं. द फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू शेयर विद मेंबर्स इज, हमको चाहिए कि खड़ा होकर पूछे कौन सा सेक्शन, क्योंकि हर सेक्शन में एक लिमिट है. व्हाट कैन बी डन इन सेक्शन 61 cannot be done under section 65. इसके बारे में we'll talk about a few provisions and related instances. हमारे जो आज अभी तक के जो एक्सपीरियंस है गुजरात में, तो एक्सपीरियंस के नाम से गुजरात बाकी सबको तो पीछे छोड़ के चला गया गुजरात है. तो एक नोटिस आया जीएसटी में, ऑफिसर डीलर के जो बुक्स मेंटेन करने का तरीका देख करके नाखुश थे, तो ऑफिसर ने शोकॉज नोटिस दे दिया. शोकॉज नोटिस अंडर सेक्शन 35 रेड विथ रूल 56 रेड विथ सेक्शन 122, 50,000 रुपए का पेनल्टी. क्यों? बुक्स प्रॉपर नहीं थे. ये तो 25 साल से हम भी कह रहे हैं, वो अलग बात है. तो ऑफिसर ने कहा शोकॉज नोटिस. सो डीलर ने रिप्लाई किया, डियर सर, वी रिसीव्ड योर लेटर नोटिस डेटेड सो एंड सो demanding penalty. Notice is issued under section 35. Request you to please confirm where is the power to issue notice under section 35. 1.5 साल हो गया, अभी ऑफिसर से अभी जवाब नहीं आया. So please be very careful. There is one very important section in GST, section 160 subsection 2, जो कहता है यदि कोई नोटिस, ऑर्डर या कोई भी प्रोसीडिंग नाजायज तरीके से अगर कैरी आउट हो, इफ यू एंटरटेन द प्रोसीडिंग्स, इफ यू डोंट क्वेश्चन द प्रोसीडिंग्स, वो नाजायज प्रोसीडिंग्स जायज में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इट इज योर ड्यूटी टू आस्क द क्वेश्चन. ऐसा नहीं है कि हम रूडली बात करेंगे, रूडली बात करना तो हमें आता भी नहीं है. क्लैरिटी के साथ बात करेंगे. सेक्शन 160 सबसेक्शन 2 को सामने रख के, द डीलर, द रजिस्टर्ड पर्सन इज बार्ड फ्रॉम एंटरटेनिंग सच ए नोटिस. प्लीज एक्सप्लेन टू मी अंडर विच सेक्शन यू आर टेकिंग दिस एक्शन. क्योंकि क्या है, सर्विस टैक्स कुछ हद तक, उसके बाद वैट तो मतलब कंप्लीटली सरकार का काम कर रहे हैं. इस बहाने से प्रोसीजर्स का बहुत ही वायलेशन हो रहा था. कभी डिपार्टमेंट ने वैट में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट करके असेसमेंट करके ऑर्डर पास कर दिया, 30% लेबर भी डिडक्शन दे दिया, असेसमेंट भी हो गया. 3 साल बाद एक और रीअसेसमेंट का नोटिस आ गया, ये कहते हुए कि नहीं तुम्हारा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट इज ए सेल सिम्प्लिसिटर, तो वो लेबर डिडक्शन जो दी गई दैट इज नॉट करेक्ट, वी हैव टू डिमांड फुल टैक्स. अभी डीलर को चाहिए था कि वो केस लॉ निकाले, गुजरात के निकाले, सुप्रीम कोर्ट के बाकी सारे जजमेंट्स, इंटरप्रिटेशन, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेनेशन, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, रामनाथन अय्यर कॉमेंट्री, ये सब ले जा करके अपने इनोसेंस को साबित करना था. जीएसटी में अब वो नहीं रहा,
क्योंकि सेक्शन 59 इज वेरी क्लियर, जीएसटी इज ए सेल्फ असेस्ड टैक्स. So the self-assessment that is made by the taxpayer is presumed to be correct unless the department can produce under the correct section with evidence an allegation that the assessment is incorrect. अभी डीलर का बस ये जिम्मेदारी है कि बैठे रहे, वेट फॉर द नोटिस एंड से ना, I don't agree. No, but you are liable to tax. I don't agree. Because section 58 of Evidence Act 1872 कहता है कि undisputed facts don't need to be proved. Section 101 कहता है person who makes an assertion has the responsibility to prove that assertion. उसको कहते हैं burden of proof. लेकिन हम इतना टैक्स कंप्लायंट है कि उनका काम भी हम करने के लिए तैयार है. जीएसटी ऑडिट के बहाने एक लेटर आ गया डीलर के पास, प्लीज गिव मी जीएसटी और 1 3B 2A वर्सेस 3B 1 वर्सेस 3B 9C ऑडिटेड बैलेंस शीट. डीलर ने रिप्लाई लिखा, डियर सर, ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड बाय यू इज अवेलेबल इन द पोर्टल, काइंडली डाउनलोड. वहां से भी जवाब नहीं आया. अब ये आदत हो गया रिक्वेस्ट करते करते, यू वांट जीएसटीआर 1, आई विल गिव यू जीएसटीआर 10 ऑल्सो, जो कुछ भी चाहिए मैं दूंगा. प्लीज बेयर इन माइंड, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द रेवेन्यू. सिर्फ सेक्शन इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेटेड बर्डन जो है 155 कहता है इट इज ऑन द डीलर. सर्विस टैक्स के जो इतने सारे नोटिस आ गए दिसंबर में, 26AS is not matching with ST3. क्यों मैच हो? वहां पे तो कैश बेसिस चल रहा होगा, एक्रूअल चल रहा होगा, कोई और बेसिस चल रहा होगा. Why it should match with point of taxation? नहीं, हमारे प्रोफेशनल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ये मान के चल रहे हैं कि अभी हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी बेगुनाही साबित करना. That is not the way GST works. GST, the burden of proof is on the revenue. एक और नोटिस आया, your turnover as per financials is 10 crores, your turnover as per returns is 6 crores, please pay tax on the 4 crores. तो डीलर ने रिप्लाई लिखा, the difference of 4 crores is a export. The burden to prove the assertion is on the person making the assertion. अभी वापस सवाल आया, since you are saying the 4 crore is a export, please provide proof that it is a export. अभी जो बंदर उनके कंधे पे था चलकर हमारे कंधे पे आ गया. डीलर को चाहिए कि रिप्लाई लिखे, डियर सर, there is no presumption in law. The notice is admitting that there is a failure of investigation. बोल पाएंगे? I want to encourage you to please say it. There is an abandonment of the investigation. Therefore, in the absence of burden of proof being discharged, there is no further explanation that is available to be offered, because show cause notice is the conclusion of the investigation. Investigation cannot be continued neither by the adjudicating authority nor by the taxpayer after the show cause notice is issued. Entire GST Act में सबसे favorite section जो taxpayer के safeguards के लिए बनी है, it is section 75. 75(7) में कहता है, on the grounds on which the show cause notice is raised, on the same grounds एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज टू एडजुडिकेट. अगर उनके तजुर्बे के हिसाब से ये बनता है कि नहीं नहीं ये 4 ग्राउंड्स तो कुछ खास नहीं है, मैं बताता हूं कि कैसे डिमांड कंफर्म किया जाता है, दैट इज नॉट पॉसिबल. इफ यू सी सेक्शन 107(11), absolutely sir, absolutely, Supreme Court has said this in Nizam Beverages 213 LT. So therefore, absolutely, well settled. But as a tax professional,
We are so interested in avoiding litigation. Let me tell you, in GST, there will be an explosion of litigation. Pataka nahi, explosion. There is going to be an explosion of litigation because rough estimate के हिसाब से GST में 150 से भी ज़्यादा ट्रिब्यूनल के बेंचेस होंगे GST में ऑल इंडिया बेसिस पे, 150 से भी ज़्यादा. जब पायलट अनाउंसमेंट करते हैं कि बेल्ट बांधो, ऐसे नहीं कि बस वो एक सजेशन दे रहे कि बेल्ट बांधो, वो कह रहे हैं, एक्चुअली वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं कि आगे टर्बुलेंस है, लेकिन हम बेल्ट नहीं बांधेंगे. तभी पानी पीना है, तभी वॉशरूम जाना है, तभी वो एयर होस्टेस को परेशान करना है. पायलट कह रहा है बैठो भाई, जो कुछ भी चाहिए इधर ही आ जाएगा, लेकिन सुनते नहीं है क्योंकि टर्बुलेंस आने वाला. 100+ tribunal benches in the country. So my next request for our members is, if you have not done litigation, don't worry, you will do litigation. I want to encourage you to make sure that you get into litigation, क्योंकि notices तो बेशुमार आएगा. प्रॉब्लम ये नहीं है कि नोटिस आ जाएगा, नोटिस आएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है अगर हमारे पास नोटिस के बदले जवाब नहीं है, we don't have answers when the notice comes. तो तीन चीज तो हमको, we have to be very careful in GSA regarding notices, what we have to keep in mind. First, most important, which section? If you don't pay attention to which section, then we will lose sight of what action. First, most important is which section. Next aspect that we have to keep in mind is timelines. Timelines for the communication. Which section, what communication. एक आध एग्जाम्पल देते हैं. सेक्शन 61 में अगर आप देखेंगे तो 4 things are important in section 61: proper officer, return, discrepancy, explanation. एक ऑफिसर ने लेटर लिखा, आपके फैक्ट्री जयपुर में है, आपके शोरूम राजस्थान के बाकी सारे सिटीज में है, तो जाहिर सी बात है कि यू आर ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स, जाहिर सी बात है यू आर ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम योर फैक्ट्री टू वेरियस आउटलेट. पीछे 6 महीने के रिटर्न्स में कहीं पे भी हमको जीटीएस सर्विसेज पे आरसीएम पेमेंट करते हुए नजर नहीं आ रहा है. बहुत सोच समझ के, पीछे 6 महीने के रिटर्न्स में हमको कहीं पे भी ये आरसीएम पेमेंट्स नजर नहीं आ रहे हैं जीटीए के सर्विसेज पे, जबकि आपके फैक्ट्री जयपुर में है, सेल्स आउटलेट बाकी सारे हैं, तो ऑफ कोर्स यू हैव टेकन जीटीए सर्विस. तो रिप्लाई लिखा, डियर सर प्लीज एक्सप्लेन इफ यू आर द प्रॉपर ऑफिसर अंडर सेक्शन 61. फिर उन्होंने अपने असाइनमेंट बताया कि यस ही इज द ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर अंडर सेक्शन 61. नोटिस आया एएसएमटी 10 में, रिप्लाई जाएगा एएसएमटी 11 में, उसका कंक्लूजन होगा एएसएमटी 12 में. कहीं पे भी स्पॉट रिकवरी का जिक्र भी नहीं है, तो डोंट वरी, देयर इज नो रेफरेंस टू डीआरसी 7 एंड और डीआरसी 3. सो प्लीज कीप दैट एस्पेक्ट इन माइंड कि पेमेंट कोई नहीं करना है. जब पेमेंट करना नहीं होता है तो थोड़ा डेयरिंग ज्यादा हो जाता है, जब पेमेंट करने की बात आती है तब थोड़ा हवा निकल जाता है. तो प्लीज बी वेरी केयरफुल, विच सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट. एएसएमटी 10 के नोटिस आ गया, डीलर ने रिप्लाई किया, डियर सर वी रिसीव्ड योर लेटर इन नोटिस इन एएसएमटी 10 एंड यू आर आस्किंग अ सर्टेन क्वेश्चन रिगार्डिंग द डिस्क्रिपेंसी. प्लीज एक्सप्लेन हाउ दिस इज ए डिस्क्रिपेंसी अराइजिंग फ्रॉम द रिटर्न. आपके जो मतलब सोचने की कैपेसिटी है, आपके दिमाग की जो कैपेसिटी है, वहां से निकल के जो आता है उसका समाधान बताना मेरा काम नहीं है 61 के अंडर में. वो होगा 67 में, वो होगा 65 में. सस्पिशन कैनॉट बी क्वेश्चनड इन 61, डिस्क्रिपेंसी कैन बी क्वेश्चनड इन 61. 6 महीने हो गए अभी जवाब नहीं आया, क्योंकि सेक्शन कहता है इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन यू कैन कंक्लूड द प्रोसीडिंग्स. इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन यू टेक एक्शन अंडर 65, 66, 67, 73, 74, नथिंग अंडर 79, रिकवरी ऑफ टैक्स. तो चिंता किस बात का, गिव एक्सप्लेनेशन. स्टूपिड होना कोई गुनाह नहीं है, ना होने की कोशिश तो जिंदगी भर चल रही है. द एक्सप्लेनेशन नीड नॉट बी सेटिस्फैक्टरी. कहता है कि एक्सप्लेनेशन देना चाहिए. एएसएमटी 11 में एक्सप्लेनेशन, एएसएमटी 12 में ऑर्डर. सो विच सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट. सेक्शन 62 कहता है बेस्ट जजमेंट.
क्या कहता है 62 फॉर ए नॉन फाइल, मतलब रजिस्ट्रेशन ले लिया लेकिन रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहे, रजिस्ट्रेशन ले लिया लेकिन रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहे, उनके लिए 46 में नोटिस निकलना चाहिए GSTR 3A के फॉर्मेट में, 15 दिन का टाइम, उसके बाद बेस्ट जजमेंट के नाम से वर्स्ट जजमेंट ऑर्डर बनेगा, क्योंकि सामने वाला की अभी कैपेबिलिटी इतना खास नहीं है जीएसटी में। मेंबर्स पैंडेमिक के चलते भी मेंबर्स इतना प्रयास कर रहे हैं कि सेमिनार अटेंड करे, कोई नोटिस के बारे में हमारा जो साउथ इंडिया के जो कन्फ्यूजन है वो यहाँ तक पहुँचाए, आपके कन्फ्यूजन ले जाएं, हैं जानते तो कोई कुछ भी नहीं है, हैं? तो नोटिस ऐसे निकल रहे हैं कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट टू बी डन, तो दे विल अराइव एट एनी रिटर्न, बेस्ट जजमेंट के नाम से कहेंगे कि लास्ट रिटर्न्स फाइल्ड, उससे 20% ग्रोथ पकड़ के चलेंगे। अरे पूरे देश 4.5% पे चल रहा है, सिर्फ हमारा बिजनेस मंथ टू मंथ 20% ग्रो हो रहा है। तो therefore a worst judgment order will be passed. The beauty is to know the section, which section very important, time limit 62(2) कहता है कि जब ऐसे बेस्ट जजमेंट ऑर्डर बन जाता है तो यू हैव टू फाइल ए वैलिड रिटर्न विद इन 30 डेज, वैलिड रिटर्न विद इन 30 डेज। तो 30 डेज के अंदर वैलिड रिटर्न, व्हाट इज ए वैलिड रिटर्न? 217 वैलिड रिटर्न इज ए रिटर्न वेयर द एडमिटेड लायबिलिटी इज डिस्चार्ज्ड। Two questions. Is a belated return an invalid return? No. It is also a valid return. Is a nil return an invalid return? You understood the answer. तो 30 days के अंदर एक वैलिड रिटर्न फाइल कर दो तो द बेस्ट जजमेंट ऑर्डर इज ए डीम्ड टू बी विड्रॉन, डीम्ड टू बी विड्रॉन। तो 30 days is very important. If we file after 30 days, then that best judgment order is alive and the admitted liability also has been discharged through the valid return. तो इस order का करेंगे क्या? We have to file appeal under 107(1) within 3 months. अगर वो नहीं करेंगे तो 78 के अंडर 3 months वेट हो जाएगा एंड 79 के अंडर बैंक अटैच हो सकता है। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। टाइमलाइन, दिस इज सेकेंड पॉइंट आई वांट टू शेयर विद मेंबर्स। टाइमलाइंस, 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 टाइमलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्या है, हमारे रजिस्ट्रेशन के चलते मोबाइल नंबर किसी का दे दिए, ईमेल आईडी किसी और का दे दिए, बाद में पता चला कि जो रजिस्ट्रेशन के काम में हेल्प कर रहे थे वहां से फाइल कहीं और ट्रांसफर हो गया लेकिन नंबर वही है। सो प्लीज बेयर इन माइंड, अपडेट ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड मेक श्योर इट इज द करेक्ट ईमेल आईडी। हमारे ऑफिस में क्या है, एक ग्रुप ईमेल आईडी बना दिया है ताकि हर मेल जो उस आईडी में पहुंचता है वो 4 जने को चला जाएगा, ताकि कोई ना कोई देखेगा, नोबडी विल मिस इट। लेकिन हमारे कैपेबिलिटी देखो, मैं सोच रहा हूं कि वो दूसरा देखेगा, वो सोच रहा है कि मैं देखूंगा, इसके चलते हमने भी मिस कर गए। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल, सब अपने अपने हिसाब से यू प्लीज फाइंड आउट ए प्रोसीजर कि कोई भी कम्युनिकेशन मिस ना हो। मध्य प्रदेश से एक जजमेंट निकला है कि अगर ऑनलाइन में सर्विस नहीं होता है तो वो सर्विस नहीं है। आई फील दैट जजमेंट नीड्स रिकंसिडरेशन कि सेक्शन 169 में 14 तरीके हैं, एक काम करने का एक तरीके में 4 मिस्टेक हो जाते हैं। जब 14 तरीके हैं तो यू कैन इमेजिन व्हाट कैन गो रॉन्ग। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल, नोटिसेस शुड नॉट बी इग्नोर्ड। कोई कहता है कि नोटिस आ गया, छोड़ो भाई, डिन नंबर नहीं है तो डस्टबिन में डालो, किसी ने कह दिया। स्टेट वाले तो कहीं कितने तो स्टेट्स में वो डिन का सिस्टम ही फॉलो नहीं करते। माई रिक्वेस्ट, माई मोस्ट हम्बल रिक्वेस्ट, कोई भी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से जो आता है, चाहे वो डिन के साथ आए या डस्टबिन के साथ आए, ईमेल में आए, जीमेल में आए, संपर्क@gov वहां से आए या कहीं और से आए, डोंट इग्नोर। क्यों? सेक्शन 75(12) स्वयं निर्धारित कर, सेल्फ असेस्ड टैक्स, अगर वो अनपेड है और उस पे जो ब्याज बनता है उसका रिकवरी करने के लिए शो कॉज नोटिस का भी दरकार नहीं है। ये कहता है सेक्शन 75(12). हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट, चेन्नई हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट ने तो बोल दिया कि नोटिस के बिना तो कुछ नहीं कर सकते। ऐसे कैसे?
मैंने कहा गांधी जजमेंट में भी बोल दिया कि नोटिस का बहुत इंपॉर्टेंस है, बट प्लीज बेयर इन माइंड यहां पे देयर इज ए डिफरेंस, देयर इज ए डेलिबरेट लेजिस्लेटिव प्रोसेस। जीएसटी में एक हाथ में हमने कह दिया कि सेल्फ असेसमेंट है, सेल्फ असेस करने के बाद वापस नोटिस किस बात का? चलो सेल्फ असेसमेंट ऑर्डर कहां है? हर असेसमेंट का एक ऑर्डर होना चाहिए। जब सेल्फ असेसमेंट कर रहे होते हैं, वेयर इज द ऑर्डर फॉर सेल्फ असेसमेंट? सेल्फ असेसमेंट ऑर्डर इज नथिंग बट योर टैक्स इनवॉइस। GSTR 1 is only a disclosure of my own assessment. प्रिया ब्लू के जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इट इज एन असेसमेंट, सो देयरफॉर माय GSTR 1 is only a disclosure of my already assessed liability. GSTR 3V is the way to discharge the disclosed liability. So please bear in mind, once I myself have assessed the liability, I have made an admission कि मेरा इतना liability बनता है। GSTR 1 में थोड़ा मिस्टेक हो गया, 3B में संभाल लिए। 3B में कोई संभाला नहीं है, 3B में जितना पैसा था उतने का टर्नओवर बता दिया बैक कैलकुलेशन करते हुए। सो प्लीज बेयर इन माइंड सेल्फ असेस्ड टैक्स। अभी जीएसटी 2021 के बजट में एक एक्सप्लेनेशन भी ऐड किया गया है, क्योंकि डिपार्टमेंट इज वेरी डिटरमिन्ड। 46,000 करोड़ का ब्याज अनकलेक्टेड है 39th जीएसटी काउंसिल के मिनट्स के हिसाब से। सो प्लीज बेयर इन माइंड, सुबह सुबह बैंक के मैनेजर से फोन आएगा ये इन्फॉर्म करने के लिए कि कल शाम को आपके खाते से 20 लाख ट्रांसफर हो चुका, ऐसे हमको पता चलने वाला है रिगार्डिंग द सेल्फ असेस्ड लायबिलिटी। सो डीलर नीड टू टेक इनवॉइस प्रिपरेशन विथ अ लॉट ऑफ सीरियसनेस। मिस्टेक हो गया, हाउ लॉन्ग आई कैन कीप अ मिस्टेक? 3 months you can keep a mistake. Within 3 months you have to correct the mistake. Section 78 कहता है no recovery action until 3 months. क्यों 3 months? अपील फाइल करने के लिए 3 month का टाइम है। So please bear in mind, all mistakes must be corrected within 3 months. Otherwise, if it is an assessed liability, money can be taken away from the bank account. So therefore, when you look at best judgment assessment, we will need to recognize कि timelines extremely important. किसी का अगर रजिस्ट्रेशन कैंसल हुई हो या किसी का लायबिलिटी जब बनता है बट ही हैज नॉट डिस्चार्ज दैट लायबिलिटी, ऑफिसर के पास ये पावर है 63 के अंडर में कि वो एक नोटिस दे ASMT 14 विद DRC 1 नोटिस दे to assess liability and carry out a best judgment assessment. Friends, you need to keep in mind, ये attachment जो है ना, ये attachment जो है नोटिस के साथ किस फॉर्मेट में आता है, इससे एक क्लू मिलता है कि इसका नतीजा क्या होना है। DRC 1 आए तो नोटिस जवाब देने का मौका है, DRC 7 आया तो अटैचमेंट करने का प्रोसीजर है। तो प्लीज बेयर इन माइंड, DRC 1 है तो नोटिस, DRC 7 है तो रिकवरी। सो प्लीज बेयर इन माइंड व्हाट इज द अटैचमेंट। 63 के अंडर में द नोटिस इज गिवन इन ASMT 14 विथ DRC 1, तो वी विल फाइल अ रिप्लाई व्हाई वी शुड नॉट पे टैक्स, व्हाट इज द ट्रांसैक्शन। बट प्लीज बेयर इन माइंड, बेस्ट जजमेंट का मतलब एस्टिमेशन, अप्रॉक्सीमेशन। वहां पे वी कैनॉट से इट इज नॉट एक्चुअल, इट इज नॉट रीजनेबल, इट इज अनरीजनेबल, क्योंकि 20% उनके हिसाब से रीजनेबल हो सकता है, क्या पता उनके आइडिया में हमारा 40% ग्रोथ हो। तो प्लीज बेयर इन माइंड, एवरी सेक्शन वी विल नीड टू आइडेंटिफाई हाउ एग्जैक्टली इज द टाइमलाइन दैट इज ऑपरेटिंग अंडर। एक बार डायरेक्टर को समन्स दे दिया, आजकल समन्स का बहुत हवा चल रहा है, फोन पे बात करते तो लोग पूछते विच सेक्शन, तो समन दे दिया सेक्शन 70 बोल के। लेकिन इससे भी कुछ नहीं होना है, क्योंकि समन्स देने से जिनको समन दिया है उनका कैपेबिलिटी क्या है। एक बार ऐसे हुआ, डायरेक्टर को और टैक्स प्रोफेशनल दोनों को समन दे दिया। डायरेक्टर को समन दे दिया कि आके बताओ कि जीएसटी क्या है। जयपुर वाला केस था, डिपार्टमेंट ने कहा प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सवाल था प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। डायरेक्टर ने बता दिया प्लेस ऑफ सप्लाई इज जयपुर। 53 करोड़ का डिमांड निकल गया। प्लीज बेयर इन माइंड, टेक्निकल टर्म्स जो है, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सारे टेक्निकल टर्म्स है जो नॉन टेक्निकल पर्सन को ही ठीक से समझ नहीं आ रहा, नॉन टेक्निकल पर्सन तो बिल्कुल भी समझ नहीं सकेगा। सो देयरफॉर प्लीज बेयर इन माइंड, डोंट बी अफ्रेड ऑफ समन्स।
समन्स आया, चलो। कितने बार तो फोन आता है कि समन्स आ गया, क्या करें, 193, 228 आईपीसी, 500 रुपए का जुर्माना है। अगर सजा हो भी गया 6 months एंड 500 रुपीज मैजिस्ट्रेट के सामने उनको कंप्लेंट भी करना होगा, तो 99% ऑफ द केसेस नथिंग सीरियस इज गोइंग टू हैपन विद अ समन्स। सो डोंट थिंक ऑफ अवॉइडिंग द समन्स, प्लीज अटेंड, आंसर द क्वेश्चंस इन समन्स। ऑफिसर्स को जब ट्रेनिंग करते हैं वहां पे ये बताया जाता है कि समन्स में पूछना क्या है, समन्स किसको देना है। सबसे टॉप आदमी को पूछते कंपनी में, सबसे टॉप आदमी को पूछते हैं कि जीएसटी आप टाइम से भर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, हाउ कम यू डोंट नो। सर मैं एमडी, ये सब मेरी जानकारी से बाहर है। आपने कहा सच कहो, यू वांट मी टू गिव ट्रूथ, आई विल गिव द ट्रूथ, आई डोंट नो, व्हाई यू डोंट नो। अभी इसका तो पूरा दिन लगेगा आंसर बताते बताते। यू वांट द आंसर, आई विल गिव द आंसर। दिस ट्रांसैक्शन इज नॉट ए एक्सपोर्ट, ऐसी मत कहो, आंसर दो यस या नो। यू आर सेइंग इट इज नॉट ए एक्सपोर्ट, यू आर सेइंग हटाओ, प्लीज से इट इज नॉट ए एक्सपोर्ट। इतना जानकारी तो बीटेक करने के बाद होना चाहिए क्या? मैंने तो बीटेक करके इधर एमडी का काम किया। हाउ आई विल नो वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल? सो प्लीज बेयर इन माइंड, वी आर रिक्वायर्ड टू मेक ट्रूथफुल स्टेटमेंट्स। समन्स में कुछ नहीं होना है, क्योंकि समन्स में कही गई बात is a weakest form of evidence. Summons is an aid to investigation, it is not the end of investigation. Summons is a aid to investigation, it is not the end of investigation. लेकिन डिपार्टमेंट में summons को इन्वेस्टिगेशन का अंत मान के नोटिस दिए जा रहे हैं, अच्छी बात है, ऐसी तो नोटिस चाहिए। ऑफिस में एक लड़का था जो डिपार्टमेंट गया और वापस आके बड़े मतलब डिसअपॉइंटेड था, कहा डिपार्टमेंट में जाकर के बहुत बेइज्जती हुई मेरी। क्यों, क्या हुआ? फाइल लेके गया, फाइल में तिनके भर का भी डिटेल नहीं है, 10 सवाल कर रहा है ऑफिसर, आई एम नॉट एबल टू गिव वन डिसेंट आंसर। क्यों, क्या हुआ? P&L निकाल रहे हैं, वहां पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, रिटर्न्स बता रहे हैं, वहां पे मैच नहीं हो रहा है, बहुत एम्बैरेसमेंट हुआ। अच्छा ठीक है, तो कैसे क्लाइंट चाहिए तुमको? तो वो मुझे एक्सप्लेन कर रहा है, एक अच्छा क्लाइंट जो इनका अकाउंट्स एकदम परफेक्ट मेंटेन करता हो, मंथ टू मंथ 1 और 3 भी एकदम टैली, 2A 2B 2C 2Z जो भी आ जाए सब मैचिंग। ऐसे फाइल लेके जाऊंगा तो डिपार्टमेंट में मेरा मतलब रिस्पेक्ट होगा। ऑफिसर 4 सवाल करेगा, मैं 5 जवाब दूंगा। बोला ऐसे क्लाइंट के पीछे तो मैं जा ही नहीं रहा हूं, जो कहीं बात सुने वो किस काम का क्लाइंट। आउट पेशेंट वाले ट्रीटमेंट तो 50 रुपए देकर के लेके जाते पर्ची लिखा के, मुझे चाहिए जो 50,000 रुपए जमा करते हुए एम्बुलेंस में आएगा पेशेंट। तो निराश नहीं होना चाहिए। वी फील वेरी डिसअपॉइंटेड एज अ टैक्स प्रोफेशनल, वी आर वेरी, सर नोटिस आ गया, अच्छी बात है, दुकान चल रहा है, अच्छी बात है। क्यों सर, सिंपल सी बात है, नोटिस नहीं आएगा तो क्या करेंगे? हैं? क्लाइंट फोन करता, नोटिस आ गया, ठीक है मंडे को, नहीं ऑफिसर ने बोल दिया 3 दिन के अंदर अंदर अगर मैं जवाब नहीं फाइल किया तो क्या करेगा? ऑर्डर पास कर देगा, अच्छी बात है। अपील में जाएंगे, जितना ज्यादा केस आगे बढ़ता है उतना कम उसका मेरिट्स बनता है। प्लीज बेयर इन माइंड द proof, the evidentiary value will fall because there is no response taken from the party. एक बार केरला से एक नोटिस आया, DRC 1, लंबा चौड़ा नोटिस, ठीक है सर, रिसीव्ड। डियर सर, as per section 160 subsection 2, DRC 1 is not a notice. Show cause notice to be given as per rule 142(1) small a, you have to give a summary in DRC 1. प्लीज ड्रॉप दिस नोटिस, तो ड्रॉप कर दिया। 6 महीने बाद एक और केस आया बैंगलोर से, शो कॉज नोटिस दे दिया, तो रिप्लाई सेम, डियर सर एज पर 160 सबसेक्शन 2 शो कॉज नोटिस इज रिसीव्ड, DRC 1 इज नॉट रिसीव्ड, प्लीज ड्रॉप दिस नोटिस, तो ड्रॉप कर गया। अभी वो सीख गए, दोनों साथ में दे रहे, तो हर रिप्लाई का बिल गया, पहले रिप्लाई का भी बिल गया, दूसरे का भी, अभी नोटिस का रिप्लाई बिल जाएगा। तो देयरफॉर प्लीज बेयर इन माइंड, सेक्शन 67 में कार्रवाई हुआ, सीधा पहुंच गए 67 में,
इंस्पेक्शन करने के लिए 67(1) में इंस्पेक्शन होता है, 67(2) में सर्च होता है। सर्च के बारे में ब्रीफली बताता हूं, बहुत मजे की बात है। गुजरात वाले केसेस को तो मैं पढ़ रहा हूं, वहां तो सारे नाजायज प्रोसीजर है, कोई सवाल ही नहीं कर रहा है। हाँ, अविनाश जी तो बस बहुत मेहनत कर रहे हैं सूरत में बैठ के हैं। तो प्लीज बेयर इन माइंड, वी हैव टू रिकॉग्नाइज अंडर विच सेक्शन। 67 में वो इंस्पेक्शन कर दिए, आए दुकान में, वेरीफाई किए, सीजर करके ऑर्डर INS 2 बता के निकल गए। फिर बाद में शोकॉज नोटिस भी हुआ। शोकॉज नोटिस में देखे कि क्लासिफिकेशन का डिस्प्यूट है, यू आर क्लेमिंग द एग्जाम्शन, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ए एग्जाम्शन। अच्छा, रिप्लाई गया। 67 में बस क्वांटिटी डिफरेंस का इशू निकल सकता है। तो इंस्पेक्शन किस बात का, जो पावर दी गई है Nazir Ahmad versus King Emperor, when a power is given to do a particular thing, the particular thing must be done in the particular way or not at all. 67 is to find out quantity differences. क्लासिफिकेशन वाला काम करने का पावर ही नहीं है 67 में, तो एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया उसने, अच्छी बात है। फिर अपील में गए, द क्वेश्चन इन अपील इज ओनली जुरिसडिक्शन, ड्रॉप हो गया। एक और केस आया 17, 18, 18, 19, 19, 20, 3 साल का वो क्लासिफिकेशन को क्वेश्चन करते हुए नोटिस दे दिया। तो रिप्लाई फाइल किए, डियर सर प्लीज गिव मी 2 year एडजर्नमेंट। 2 साल, इट इज अनरीजनेबल। नहीं सर, सेक्शन तो कहता है कि 3 बार एडजर्नमेंट ले सकता हूं, कोई सेक्शन ये कह रहा है कितना एडजर्नमेंट लेना चाहिए। 17, 18 का ड्यू डेट हम सब मिलके एक्सटेंशन लाखों बार मांग लिए, तो एक्सटेंशन 17, 18 का चलते चलते 7 फरवरी 2020 तक हो गया। तो 17, 18 का डिमांड बनाने के लिए टाइम लिमिट हो गया 6 फरवरी 2025। आपके पास 5 साल का टाइम है, मुझे 2 साल का एक्सटेंशन दो। वाई इट इज ए नॉट रीजनेबल? नो नो नो, इट इज नॉट रीजनेबल, प्लीज गिव मी द रीजन। चलो 5 रीजन देते हैं, 5 रीजन। रीजन नंबर 1, you are having 5 years, I am asking only 2 years. Reason number 1, अगर आपको कोई prejudice होता है, 75(10) कहता है वो 3 साल या 5 साल के अंदर अंदर अगर शोकॉज नोटिस पे डिसीजन नहीं होता है, that notice is a deemed to be concluded. तो you are having 5 years time. अरे 18, 19, 19, 20 का तो टाइम भी चालू नहीं हुआ, पता नहीं लास्ट डेट कब होता है। तो therefore please keep in mind, I need 2 years extension. Next, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि लाइबिलिटी बनता है, 2 साल एक्सटेंशन देने से मेरे कोई तो प्रॉब्लम है, क्योंकि 2 साल का ब्याज देना होगा मुझे मंजूर है। रीजन नंबर 2, आई एम रजिस्टर्ड हियर, मेरा आधार नंबर है, मेरा पूरा आई का स्कैनिंग है, फिंगरप्रिंट सब आपके पास है, दुकान भी इधर ही है, मकान भी इधर ही है, तो देयर इज नो रिस्क ऑफ फ्लाइट। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, सेक्शन 172 जिसके अंडर डिफिकल्टी को रिमूव करने का पावर है, वो सेक्शन को एंड होना था 30 जून 2020, 3 साल, लेकिन उसको तो पीछे बजट में 2 साल बढ़ाया गया है। पहले पीछे तो गवर्नमेंट ने मेरे ही जैसे केसेस में डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए ऑर्डर्स निकाले, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर नंबर 2। तो क्या पता अगले 2 साल में मेरा भी प्रॉब्लम का समाधान आ जाए। तो वाई यू आर इन अ हरी, प्लीज वेट। रीजन नंबर 4। रीजन नंबर 5, डिमांड में ब्याज का तो डिमांड है ही, ऑलरेडी जीएसटी काउंसिल में यह डिसीजन आ गया है कि रेट्रोस्पेक्टिवली लॉ को अमेंड करना है। जब डिसीजन ले लिया गया है तो अमेंडमेंट करेंगे, ये पक्का है, लेकिन कैसे करेंगे किसको पता। तो कानूनी भी अभी स्टेबल नहीं है, तो एक्सटेंशन दो। तो बोला ठीक है, 2 साल का नहीं है, टिल 30 जून 2022 वी विल गिव द एक्सटेंशन। तो प्लीज बेयर इन माइंड, इफ वी डोंट आस्क वी विल नॉट गेट, बट वी हैव टू नो व्हाट टू आस्क। एक और केस, किसी ने कहा बिजनेस डीलर से, जितना ज्यादा रजिस्ट्रेशन नंबर लोगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगा। क्यों प्रॉब्लम होगा? मिस्टेक करने के तरीके मल्टीप्लाई होंगे। तो डीलर का एक होटल था चेन्नई में, एक होटल था बेंगलोर में। तो किसी ने कह दिया उसको रजिस्ट्रेशन नंबर ज्यादा मत लो, तो सिर्फ चेन्नई में नंबर ले लिया। बेंगलोर वाले होटल में तो वो CGST SGST चढ़ाया जा रहा है, जब जमा करना था उसका लॉगिन वॉगिन नहीं है, सारा अकाउंट्स तो बेंगलोर में ही होता है, तो चेन्नई के नंबर में जमा कर दिया। सरकार का पैसा है भाई, मुझे नहीं चाहिए, कहीं पे भी जमा करने क्या फर्क पड़ता है। तो चेन्नई के नंबर में जमा कर दिया उसने, 2 साल।
फिर डिपार्टमेंट वाले आए, इंस्पेक्शन किए, यू आर नॉट पेइंग द टैक्स, इतने बड़े होटल चला रहे हो, कोई 1.5 करोड़ का टैक्स है टोटल, 75 लाख। तो डीलर ने ओपनली बोल दिया, सर ऐसा कोई नहीं है, सरकार का पैसा हमें नहीं चाहिए, जमा किया जा रहा है। कहां पे कर रहे हैं? वो बगल वाले स्टेट में। तो ऑफिसर हैरान हो गया, वापस चला गया। महीने भर बाद पूछताछ के वापस आया, अच्छा ये रहा नोटिस, लो नोटिस, जमा करो। क्या जमा करना है? सेंट्रल टैक्स गए भाड़ में, स्टेट टैक्स दो। वो सिर्फ SGST की मांग करते हुए एक नोटिस निकाल दिया। तो इस वाले नोटिस को सीने से लगा के रखे, ये कहते हुए अभी नहीं पूछेंगे कि टेक्निकल ऑब्जेक्शन कौन सा सेक्शन, ये सब नहीं पूछेंगे। अच्छी बात है, हियरिंग फिक्स करो, प्लीज फिक्स द हियरिंग। नहीं, रिप्लाई नहीं दिया, नहीं ओरली बोल देंगे तुम हियरिंग फिक्स करो। तो हियरिंग फिक्स करवाए, ऑर्डर आ गया। I don't, party try to explain that they are not liable to tax, all the tax is deposited, we reject all the reasons and the demand is confirmed for SGST। वो लेकर के अपील पे पहुंच गए। अभी ज्वाइंट कमीशन अपील सोच रहा है, अभी कंफर्म करूं तो मैं फंसूंगा, अलाउड करूंगा तो भी मैं फंसूंगा, तो पेंडिंग रखते हैं। तो प्लीज बेयर इन माइंड, ये शतरंज है, वी हैव टू गेट इनटू लिटिगेशन, क्योंकि 1-3 में कुछ रखा नहीं है। अभी सारा कुछ तो कंप्यूटर फिलअप कर रहा है, वो खुद भी मिस्टेक कर रहा है, अपना मिस्टेक छोड़ो, वो भी कुछ कुछ कर अपने तरफ से कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो प्लीज बेयर इन माइंड, कंप्लायंस तो अपनी जगह है, वी ऑल्सो हैव टू प्रोसीड टू गेट इनटू लिटिगेशन। अब लिटिगेशन की बात करेंगे तो मेंबर्स आर लिटिल बिट स्कैर्ड, अरे क्या ग्राउंड्स बताएं यार, क्या ग्राउंड्स बताएं। अब गौर करेंगे, हर अपील का 3 ही ग्राउंड होता है, क्योंकि फीस ज्यादा लेते हैं, 30 ग्राउंड बना के फाइल करते हैं, लेकिन फ्रैंकली बात करें तो 3 ही ग्राउंड है। द ऑर्डर इज नॉट एज पर लॉ, द ऑर्डर इज कॉन्ट्ररी टू फैक्ट्स, द ऑर्डर इज नॉट फॉलोइंग द डिसीजंस एंड द सर्कुलर्स। तो मैं कहता हूं फाइल कर लो अपील, हियरिंग के लिए किसी को बुला लेना, लेकिन फाइल कर दो अपील, क्योंकि टाइम की लिमिट है। 107 में कहता है 3 महीने के अंदर अंदर अपील को फाइल करना है, 30 दिन का कंडोनेशन ऑफ डिले हो सकता है। रतन लाल, मोतीलाल एंड छोटेलाल एंड अदर्स वर्सेस रेवा कोलफील्ड्स वाले जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, जब अपील के जो टाइम लिमिट है वो पार हो जाता है तो योर रेमेडी इन द लॉ हैज एक्सपायर्ड। चाहे जितना भी वाहियात डिमांड हो, योर राइट्स यू हैव वॉश्ड अवे। तो प्लीज फाइल अपील। अभी ग्राउंड्स में इतना क्लैरिटी नहीं है, तो मुझे क्लैरिटी है, आपको नहीं होगा। कौन? अपेलेट अथॉरिटी, आपको शायद नहीं होगा, मैं बताता हूं। हियरिंग फिक्स करो, मैं बुला के आता हूं, चेयरमैन सर है उनको बुला के आता हूं, वो आर्ग्यू कर लेंगे, लेकिन अपील मेरा 3 महीने के अंदर अंदर फाइल हो गया। तो प्लीज बेयर इन माइंड, गेट इनटू लिटिगेशन वर्क। 150 ट्रिब्यूनल बेंचेस, तो कहीं पे भी बैठ, ऐसे नहीं है कि गुजरात तक ही आपका काम सीमित होना चाहिए, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान, मिनिमम वेस्टर्न रीजन तो कवर कर ही सकते हो। तो प्लीज बेयर इन माइंड, इट इज ट्रूली ए 1 नेशन 1 टैक्स। पहले बेंगलोर में बैठ के 30 किलोमीटर की भी दूरी नहीं है, तमिलनाडु के जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, वहां के वैट क्या होगा इसका बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं था, क्योंकि राइटिंग में एक कानून है, अनरिटन एक और है। तो देयरफॉर इन जीएसटी कहीं पे भी बैठ गए, बैंगलोर से कोई बुलाता मुझे, अहमदाबाद नहीं। देखिए, सी दैट इज द पावर ऑफ जीएसटी एंड आई एनकरेज ऑल ऑफ यू टू टेक एडवांटेज ऑफ इट। Please don't limit it to your region only. You have to expand to more regions. So when you look at a notices कैसे दी जानी चाहिए, how they should identify the notice. Please bear in mind, notices लिखना बहुत टैलेंट का काम है। नोटिस लिखना इतना आसान काम नहीं है। स्टेट वाले अभी तक सीख रहे हैं, सेंट्रल वाले समझते हैं कि वो जान गए। ठीक है, सब लोग सेमिनार अटेंड किए जा रहे हैं। देयर इज सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स सेमिनार्स गोइंग ऑन, बिकॉज गवर्नमेंट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इफ आई मेक अ मिस्टेक इन द नोटिस, इट इज ए, जैसे सर ने बताया, इनक्यूरेबल डिफेक्ट। लेकिन वो डिफेक्ट जो है, वी हैव टू रेज द ऑब्जेक्शन। हर बार नोटिस के जब रिप्लाई बनते हैं, वी आर बिजी ट्राइंग टू प्रूव। ऑडिट के चलते डिपार्टमेंट ने एक लेटर लिखा, प्लीज गिव मी, please listen to this very carefully, please give me segment wise profitability statement, north south east west geography। आपके जो डिफरेंट कमोडिटीज है, हर प्रोडक्ट के सेगमेंटल
प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना के दो, आई वांट टू वेरीफाई। क्या पता किसी एक सेगमेंट में आप लॉस कर रहे हैं, उसमें वैल्यूएशन इशू हो, जो लॉस किसी और सेगमेंट में कंपनसेट हो रहा हो। तो डीलर ने रिप्लाई लिखा, डियर सर, रिसीव्ड योर लेटर, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन यू आर रिक्वायरिंग मी टू प्रोवाइड, प्लीज फाइंड अटैच्ड टैली बैकअप, request you to kindly prepare the working, give one copy, our board of director asking for last 3 years. Stupid होना गुनाह नहीं है, बट नहीं, हम वो नहीं करते, सेगमेंट वाइज चाहिए। सबसे स्मार्ट कौन है? सबसे यंगेस्ट मेंबर इन द ऑफिस विल बी द स्मार्टेस्ट, क्योंकि वो एक्सपीरियंस चलते चलते वो जो पढ़े वो सब हवा में छोड़ दिए। तो उसको बुलाए सेगमेंटल रिपोर्टिंग। जब हम क्वालिफाई हुए तब AS1 मैंडेटरी था। क्या है AS1? वॉट एवर इज योर अकाउंटिंग पॉलिसी प्लीज डिस्क्लोज इट। तो सेगमेंटल तो पढ़े नहीं, उसके बाद तो वो CP पॉइंट्स भी 0 रहा है। तो वी आर बिजी प्रिपेयरिंग ऑल दिस प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेशन, सेगमेंट वाइज, ज्योग्राफी वाइज, क्वार्टर वाइज। डोंट डू ऑल दिस, इट इज नॉट योर जॉब। डियर सर, GST is a self-assessment tax. We have completed the assessment. Thank you very much. अभी डिपार्टमेंट गुस्सा हो गया। अभी 67 में इंस्पेक्शन करने आए, इंस्पेक्शन करते हुए दे वांट टू सीज। अच्छा, तो पूछे सीजर करने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स है? इंग्रेडिएंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इंग्रेडिएंट इज वेरी इंपॉर्टेंट? एवरीथिंग इज मेड ऑफ बेसन, लेकिन द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज नॉट द सेम। एवरीथिंग इज मेड ऑफ गेहूं, लेकिन द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज नॉट द सेम। अभी देखा लंच के टाइम, एक फ्लैट था, घी एकदम पफ था, दूसरा, दोनों व्हीट से बना है। तो देयरफॉर द इंग्रेडिएंट्स आर डिफरेंट। सेक्शन 67(2) में चाहिए कि सीजर करने के लिए समथिंग मस्ट बी सीक्रेटेड। इफ नथिंग इज सीक्रेटेड, सीजर इज नॉट पॉसिबल। बट आई विल सीज, करके जाओ सर, लेकिन लिखो कि कहां पाया गया। We entered your shop, we saw in the shop all the stock in the shelf, it is not accounted, so तो secreted कहां हुआ? Goods liable for confiscation, 130 subsection 1 के अंदर 5 वजह हैं जो confiscation के लिए लायक हो। If it is not secreted, it cannot be confiscated. Books, documents and things, documents, books and things necessary for investigation. तो वो अलमारी तोड़ रहे हैं, रूम के ताले तोड़ रहे, टू फाइंड आउट एंड सीजर लिखने के लिए। सर आप करो सर, वो करो सर, करते रहो। हाँ, जब आप ढूंढ रहे होते हैं ना, तो 15, 16, 16, 17 ना इनकम टैक्स का एक फाइल हमारा खो गया है, अगर वो मिले तो वो भी निकाल के दे देना बस। डोंट बॉदर, अभी टेंशन आ गए तो टेंशन, डोंट वरी। इफ द प्रोसीडिंग्स आर टेंटेड, even a legitimate discovery is inadmissible. If the proceedings are tainted, even a legitimate discovery is inadmissible in law. So therefore, please bear in mind, extend full cooperation to department, but stop and ask the question. First point is, which section? Second point is, timeline. Third is, what is the strategy? How you want to reply should be decided. ऐसा नहीं कि, please bear in mind, the truth is not relevant. The truth is not relevant. The fact only is relevant. A murdered B. Here रहा sentence. Sir, A murdered B. इस sentence में fact क्या है? A murdered B. इस sentence में fact क्या है? B is dead is the only fact. Murder is the allegation, A is the accused. क्या पता ट्रायल में क्या हो। लेकिन हम क्या सोचते हैं, पूरे सेंटेंस को एकदम फैक्ट मान के चलते हैं। 26 AS में आपका टर्नओवर इतना है, ST3 में इतना नहीं है, तो आके जवाब दो। सीधे जा करके पांव पड़ गए। अब 26 AS कब से एक्यूरेट होने लगा? 26 AS कब से एक्यूरेट होने लगा? ऑडिट काम खत्म करते करते सितंबर हो गया, लेकिन पिछले साल के 26 AS में वो TDS कट गया।
और उसका रिकंसिलिएशन करने के लिए 2 साल और निकल गया, फिर 199 में ऑर्डर बना, उसमें भी समाधान नहीं हुआ, फिर कुछ हद एक लिमिट के बाद छोड़ दिए, नेशन बिल्डिंग के में काम आएगा, बराबर ना? तो प्लीज बेयर इन माइंड, वी आर अस्यूमिंग समथिंग दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम द डिपार्टमेंट इज समहाउ बियॉन्ड चैलेंज. If you don't dispute it, 58 Evidence Act, undisputed facts don't need to be proved, so dispute everything. You are a manufacturer, sir, बोल नहीं सकते सर. Your classification is so and so, sir, guarantee नहीं बोल सकते सर. You are supplying, पक्का नहीं बोल सकता सर. It is not taxable, यकीन से नहीं कह सकता सर. तो please bear in mind, we have to avoid one significant issue. सेक्शन 74 में एक्सप्लेनेशन 2 है, जो सप्रेशन वाले वर्ड का डेफिनेशन जो है वो मॉडिफाई कर दिया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सप्रेशन का डेफिनेशन क्या है आप जानते होंगे. जीएसटी में क्या है? इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड, नॉट फर्निश्ड इक्वल सप्रेशन. अरे यस, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड, नॉट फर्निश्ड इक्वल टू सप्रेशन. लेकिन मेरा तो कोई इंटेंशन ही नहीं था, ट्रूथ से किसी को इंटरेस्ट भी नहीं है सर. फैक्ट, सामने वाला केस के बारे में क्या जानता है उस पर डिपेंड है. बेड नंबर, हम मेंबर्स को चाहिए, टैक्स प्रोफेशनल्स को चाहिए कि केस से मतलब बहुत डिटैच्ड हो, निष्पक्ष होकर के देखना चाहिए. जैसे डॉक्टर देखते हैं, बेड नंबर 27 सर्जरी ऑन मंडे, बेड नंबर 27 सर्जरी ऑन मंडे. वो कौन है, क्या है, उसका नेचर क्या है, वो सब दिलचस्पी नहीं है, नो इंटरेस्ट. नोटिस में क्या फैक्ट है, लिमिट योर रेस्पॉन्स टू ओनली दैट. प्लीज फाइंड आउट, क्या मेरे जिम्मेदारी है कि बेगुनाही साबित करूं? नहीं, गुनाह उनको साबित करना है. क्या साबित करने लायक एविडेंस है? एविडेंस होता ही नहीं, क्योंकि उनको क्या पता कि एविडेंस कहां रखा हुआ है. हैं? अबे रिकॉर्डिंग शायद चल रहा होगा, लाइट भी चल रहा है, डेंजर है. तो देयरफॉर प्लीज बेयर इन माइंड, 990 बहुत काम की चीज है. चाहे ऑडिटर को साइन करना पड़े या बिना सिग्नेचर के ऑडिटर से ही काम करवा के फाइल करेंगे बजट के बाद, अपना तो काम कम नहीं होना है, फीस कम होगा. पीछे का भी नहीं आ रहा है, वो भी तो पेंडिंग है लॉकडाउन के चलते. लॉकडाउन से रिटर्न्स का क्या है? नहीं सर लॉकडाउन है, चलो ठीक है भाई, सैलरी भी 20% कट कर दिया तो आपका भी 100% पोस्टपोन करेंगे. हैं? तो ये सब झेला है लास्ट ईयर. तो देयरफॉर प्लीज बेयर इन माइंड, 990 वेरी इंपॉर्टेंट. डीलर सोचता है कि देखो परचेज सेल्स क्लोजिंग स्टॉक इससे ताल्लुक रखो, उससे बाकी सब नॉट इंटरेस्टेड. अभी जीएसटी में वैसा नहीं है. जीएसटी में एंटायर टीबी मस्ट बी इन 3B, एंटायर टीबी मस्ट बी इन 3B. लेकिन नहीं, वो नहीं कर रहे, सिर्फ सेल्स. अभी कितने मेंबर्स यहां पे कैशबैक पाया है? बेंगलोर में तो पागल है कैशबैक के पीछे. क्या खरीदा तुमने? ऑनलाइन में खरीदा मैं, तो कितना कैशबैक मिला? 3000 कैशबैक मिला. क्या खरीदा? पता नहीं यार, वो पार्सल आने से पता चलेगा. इतना मतलब उतावले है कैशबैक के लिए. जो पैसे लेता है वो सप्लायर है या कस्टमर है? जो पैसा लेता है वो सप्लायर है या कस्टमर है? पैसा जो लेता है वो सप्लायर है, पैसा जो देता है वो कस्टमर है. क्या भूल गए? दुकान में जाके फावड़ा खरीदे और दुकानदार से 200 रुपए पैसे भी ले लिए, चोरी है वो. जो पैसा लेता है वो सप्लायर है. कैशबैक जितने ने भी लिया है जीएसटीआर 1 में बताए नहीं, टैक्स इनवॉइस चढ़ाए नहीं, टैक्स जमा हुआ नहीं, एटलीस्ट इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट में बताए नहीं, वो पेट्रोल एक्सपेंडिचर में नेट कर दिया. अरे बाप रे, खून भी कर लिया और लाश भी छुपा दिया. सप्रेशन ये नहीं तो क्या है? तो देयरफॉर प्लीज बेयर इन माइंड, एंटायर टीबी टू बी इन 3B. एक डीलर ने लैंड खरीद के बेच दिया, कुछ उसमें डिस्प्यूट था, वो डिस्प्यूट क्लियर करके बेच दिया. स्टैंप ड्यूटी 5% है. वैसे भी ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं है, तो एक इरिवोकेबल जीपीए बना के वो खरीद लिए 1.5 करोड़ पे. पूरा मसला सॉल्व करके 2 करोड़ में बेच दिए. जीएसटीआर 9 में बता दिया ऑडिटर को कि सर इट इज ए सेल ऑफ ए प्रॉपर्टी. अच्छा तो ठीक है, तो जीएसटी नहीं है उस पर, तो बताए भी नहीं. फिर बाद में पता चला कि वो सेल्ड डीड नहीं रहा, वो जीपीए था,
जब जीपीए में ट्रांसफर होता है, सूरज लैम्प्स डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इट इज नॉट ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं है तो द 50 लाख इज नथिंग बट ए एजेंसी कमीशन, 18% जीएसटी है उस पर। जीएसटी और 9 देखेंगे तो पता चला कि टेबल नंबर 5 में उसको दिखाया भी नहीं। तो प्लीज बेयर इन माइंड, जहां पे टैक्सेबल है वहां पे तो सारा डीलर ने टैक्स दे, एक्सेप्ट भी कर रहा है। चर्चा सिर्फ इस बात का होगा कि रेट ऑफ टैक्स में क्या 19-20 हो गया, लेकिन जो नॉन टैक्सेबल है वहां पे बहुत ज्यादा डिबेट होने वाला है। वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड विथ अवर रेस्पॉन्स। सो माई सजेशन इज, चाहे वो रिक्वायर्ड हो नहीं या नॉट रिक्वायर्ड हो, बता दो जीएसटी आर 9 में, क्योंकि इट इज अल्टीमेटली टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन। टेबल नंबर 5 सप्लाई हो, नॉन सप्लाई हो, नो सप्लाई हो, नॉन जीएसटी हो, एग्जेम्प्ट हो, बता दो। एग्जेम्पशन के बारे में अगर बात करेंगे तो बहुत समस्या है, क्योंकि लोग तो अपने ही धुन में है कि एग्जेम्प्ट क्या है। एक आध एग्जाम्पल लेके बात कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस बिकॉज दैट इज हाउ नोटिसेस विल कम। पूजा सामग्री इज ए एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। पूजा सामग्री इज ए पूजा सामग्री बिफोर पूजा और आफ्टर पूजा। एक चर्च के बाहर दुकान में कैंडल्स बेचते हैं, जो डिवोटी चर्च जाते हैं वहां कैंडल खरीद के चर्च में जाकर के वो प्रेयर करने के बाद वो जलाते कैंडल और निकल जाते हैं। दुकानदार एग्जाम टर्नओवर बता रहा है, क्यों क्या हुआ? अरे पूजा में यूज हो रहा है, नहीं वो पूजा में यूज हो रहा है तो इट इज ए पूजा सामग्री। बट प्लीज बेयर इन माइंड, पूजा सामग्री must be entirely for a puja. General purpose article used for a special purpose will not become anything less than a general purpose article. तो उनको तो हाथ से टैक्स देना पड़ा। प्रसादम is a exempt from tax. प्रसादम is a प्रसादम before worship or after worship. Before worship it is a sweet food item. After worship it is prasadam, but after worship nobody is supplying. तो ये exemption किस काम का? तो please be very careful how to use this exemption. अच्छा, how many have clients who are nursing home hospital, running nursing home hospital? Okay, how many nursing home hospital and even doctors are getting income other than medical sources? हेल्थ केयर सोर्स से तो इनकम आ ही रहा है, उसको छोड़ते हैं। अदर देन दिस वेयर दे आर गेटिंग इनकम, एक हॉस्पिटल है, उनके फार्मेसी से उनको किराया मिलता है, कैंटीन से मिलता है, बिल्डिंग के टॉप में सेल फोन का टावर भी फिक्स हुआ है, और रेफरल फीस काफी सारा मिलता है। कार पार्किंग मैनेजमेंट जो कॉन्ट्रैक्टर है वो टेंडर में उनको पैसे दे रहा है। तो प्लीज बेयर इन माइंड, इट इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। हेल्थ केयर सर्विस इज टैक्स एग्जेम्प्ट, बाकी सारे इट इज टैक्सेबल। एजुकेशन सर्विस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, लेकिन आजकल ट्रेडिशनल एजुकेशन कोई दे भी नहीं रहा है। +2 में देखेंगे साइंस वाले सारे मेडिकल या इंजीनियरिंग के एंट्रेंस भी साइड बाय साइड सीख रहे हैं, कॉमर्स वाले सीपीटी कर रहे हैं, आर्ट्स वाले एलएलबी की एंट्रेंस कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। सो देयरफॉर प्लीज बेयर इन माइंड, ओनली लिमिटेड एग्जेम्पशन। स्कूल्स में तो मतलब एकदम मनमानी चल रहा है। हमारे स्कूल में ऐसा था कि बाय अक्टूबर कुछ हमको नए जूते का जरूरत पड़ जाता, क्योंकि जूते है ही पत्थर को मतलब फुटबॉल खेलने के लिए हैं। तो यू हैव टू बाय द शू ओनली फ्रॉम ए पर्टिकुलर शॉप। यूनिफॉर्म हैज टू बी पर्टिकुलर शॉप में से ही। एनुअल डे फंक्शन के लिए ब्लू कलर कोट मेरे भाई के लिए, अगले साल मैं सोचा वही उसी कोट से काम चला लूं, लेकिन अगले साल वो कलर रेड हो गया। तो देयरफॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आल्सो नॉट फ्री फ्रॉम दिस। एक इंडिविजुअल डॉक्टर ले लो, इंडिविजुअल डॉक्टर, सारा उनका इनकम है मेडिकल सर्विसेज, कुछ रेंटल इनकम भी आ रहा है, उस पर टैक्स तो दे ही रहे, लेकिन वो जीएसटी सेमिनार में आके हेल्थ स्ट्रेस मैनेजमेंट के लेक्चर देंगे, ऑनरेरियम पाएंगे। एक्सरे लेने के लिए पर्टिकुलर रेडियोलॉजिस्ट के पास ही जाना होगा, हैं? अगर वहां जाओगे तो एवरीथिंग इज ओके, कहीं और जाओगे तो तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। तो प्लीज बेयर इन माइंड,
जीएसटी में ना सिर्फ मॉनेटरी कंसिडरेशन, नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन पे भी टैक्स है, करेक्ट ना? 231 प्रतिफल, कंसिडरेशन का नाम है प्रतिफल। जो पैसे के रूप में है वो तो टैक्स हो ही जाएगा, जो पैसे के रूप में ना होते हुए जो उत्प्रेरणा, दैट इज द वर्ड, उत्प्रेरणा काम करने की, तो दैट इज ऑल्सो लायबल टू टैक्स। देखा कि एक डॉक्टर साहब है, हर साल 4 बार आउट ऑफ इंडिया की सैर करते हैं, उनके बैंक अकाउंट देखोगे तो ट्रैवल्स को कोई चेक दिया ही नहीं है। तो इजी टेक कमीशन इनकम फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल कंपनी, हर ट्रिप का कितना हिसाब पकड़ के चलते हैं, 2 लाख, एक दिन का सेमिनार है, हफ्ते भर वहां रुक के आए, 2 लाख, 4 ट्रिप्स अ ईयर, 8 लाख, 10 लाख का इनकम आ गया। आर यू पेइंग टैक्स ऑन इट? जीएसटी हैज गॉन बियॉन्ड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। रिकंसिलिएशन हम बुक से कर रहे हैं, रिकंसिलिएशन देखो सब टैली हो ही जाता है। 2 टाइप के क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास, एक जिनका सारा कुछ टैली होता है, बुक्स और 9 सब टैली हो रहा है। एक और क्लाइंट आता है, उसका बुक्स और 9 टैली नहीं हो रहा है। तजुर्बे से आप बताइए कि कौन सा क्लाइंट आपको ज्यादा परेशान करेगा? जिसका टैली नहीं होता है, वी नो कि कैसे उसका टैली करना है। जिसका टैली होता है पता नहीं कि कहां ढूंढे, जैसे तैसे टैली करके तो ड्यू डेट के अंदर में फाइल कर ले। 9 महीने का टाइम देंगे तो लास्ट डे पे टैली फाइल होगा, 2 महीने का टाइम दिए, लास्ट डे में फाइल हो ही गया। अभी मेंबर्स इतने सारे उतावले, कैसे कैसे हो गया, इतना सारा काम है, वी कैन नॉट डू। तो चर्चा इस बात का नहीं है कि काम बहुत है, चर्चा सिर्फ इस बात का है जो फी अग्री कर लिए वो कम पड़ रहा है। दैट इज ऑल, इट इज ए कमर्शियल इशू, नॉट ए लीगल इशू। बेकार में फाइनेंस मिनिस्टर को परेशान किए जा रहे हैं, इट इज ए कमर्शियल इशू। अग्री कर गए रिटेनरशिप में, क्लाइंट भी एकदम स्मार्ट है, रिटेनरशिप में अग्री कर गया, सर इंक्लूडिंग 99C, प्लीज बेयर इन माइंड, नॉट इंक्लूडिंग नोटिस। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक क्लाइंट ऐसे ही आया, प्रपोजल दिए, रिटेनर का कुछ एक फीस बताए, स्कोप एक्सक्लूजन क्या है, नोटिस, नहीं नोटिस का आप एक अमाउंट बताओ हर नोटिस का, तो एक कैटेगरी रेट, बी कैटेगरी रेट, दोनों अग्री हो गया। उनको एक साल में 72 नोटिस आए, वो रिटेनर से ज्यादा ये हो गया। तो प्लीज बेयर इन माइंड, डोंट बाय अ कार, बाय द पार्ट्स, ज्यादा पैसा है। तो प्लीज बेयर इन माइंड, वी हैव टू आइडेंटिफाई वेयर वी आर इन्वेस्टिंग एफर्ट। नोटिस विल कम। नोटिस ऐसा नहीं है कि नोटिस आ गया, जवाब, फ्राइडे को नोटिस आया, मंडे को रिप्लाई दे दिए, वेडनेसडे को हियरिंग हो गया, अगले फ्राइडे को ऑर्डर अपने फेवर में आ गया। ऐसे तो होना ही नहीं है, ऐसे तो बिल्कुल होगा नहीं। ट्रिब्यूनल तो अभी फॉर्म भी नहीं हुआ, अल्टीमेट आंसर हमको मिलना है ट्रिब्यूनल से। एक हियरिंग में गए, ऑफिसर ने कहा आई अंडरस्टैंड, आप जो कह रहे हैं सही बात है। एक्चुअली माल गया नेदरलैंड टू हांगकांग, है, नेदरलैंड से परचेस हुआ, डायरेक्ट हांगकांग चला गया। ऑफिसर ने आईजीएसटी का नोटिस पकड़ा दिया, सर मोटा रकम है सर, मैं कैसे छोड़ दूं। मतलब लॉ की बात नहीं है, बस पॉलिटिक्स की बात है। हाँ, तो मोटा रकम है, नोटिस दे दिया। तो हियरिंग में गए, लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन था, मोटा सा रिप्लाई भी था। डीलर ने एक्सप्लेन, कंसल्टेंट ने एक्सप्लेन किया। ऑफिसर ने कहा सर सारा बात तो समझ में आ गया सर, लेकिन कोई रिस्क है क्या? तो डिमांड कंफर्म करो, अपील में जाएंगे। अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू गेट रिजॉल्व्ड ओनली इन द ट्रिब्यूनल बिकॉज ऑफ द इम्प्लीकेशन। मार्जिन बिजनेस में सिंगल डिजिट में है, जीएसटी डबल डिजिट में है, ब्याज 18% है, क्रेडिट में तो 24%, 3-4 साल में तो डबल ट्रिबल। सो देयरफॉर डोंट बी अनहैप्पी, आउट पेशेंट छोटा रखो, कैजुअलिटी बड़ा रखो, क्योंकि बहुत सारे वहां पे ट्रैफिक आना अभी expected है। We have to be ready. The question is not about how we will handle the notices. Question is, notices will definitely come. क्या हम ये सोचते हैं कि नोटिस जैसे आए इमीडिएटली उसका समाधान करके ड्रॉप करवाएंगे? लिटिगेशन करना नहीं है। आई एम अफ्रेड जीएसटी में इतना एम्फोसिस जो दिया गया है कि प्रोसीजर्स कैसे करना है, इट विल नॉट गेट ड्रॉप। 7511 बड़ा सुंदर सा सेक्शन है जो कहता है कॉल बुक केसेस, मतलब अगर किसी और के मामले में इसी बात को लेकर कोई हायर अथॉरिटी के सामने केस पेंडिंग हो तो आपको भी नोटिस दिया जाएगा, लेकिन ऑर्डर डिसीजन नहीं आएगा जब तक वो केस डिसाइड ना हो। आपके केस को
पेंडिंग रखा जाएगा, दैट इज 7511। तो जीएसटी लॉ ऐसा है कि इट इज नॉट ए लॉ रिटन बाय ए लॉ मेकर, इट इज ए वेरी ब्यूटिफुल लॉ रिटन बाय ए लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। एन एडमिनिस्ट्रेटर के मतलब इम्प्रिंट साफ नजर आ रहा है। ऑफ क्रिकेट जैसा है, ऑफ साइड में देखो तो 11 फील्डर यहां पे, लेफ्ट साइड में देखो तो वहां पे भी 11 फील्डर है। अभी कहां पे मारे हैं, कभी कभार तो हाथ से बल्ला भी छीन लेते हैं, ये जीएसटी पोर्टल के चलते। तो मारना है सीधा आउट ऑफ द स्टेडियम। यहां के तो स्टेडियम तो बहुत सुंदर है, पड़ा भी है, और खींच के मारेंगे। तो therefore litigation I think is inevitable. Anybody who think that I don't know how to do the litigation, only three step. First, which section? First point, which section? Second point, timelines. Timelines are extremely important. Third, strategy. File the appeal. After all, हर अपील में रखा क्या है? फर्स्ट अपील हो या सेकंड अपील हो, 10% डिपॉजिट करो फर्स्ट अपील, 20% करो सेकंड अपील, पेंडिंग है। So please bear in mind, you need to make sure that you keep the case alive. ऐसा नहीं है कि we are making more litigation. Litigation, it will happen on its own. We need to pay very close attention. अभी documentation is so important, क्योंकि क्या है, ऑफिस में जीएसटी ऑडिट के चलते किसी से कहा मैंने फाइल लेके आओ, मुझे रिव्यू करना है। लड़के ने फाइल लाया, फाइल में देखा कि एक ही पेपर है, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जीएसटी ऑडिटर। मतलब यार 3 महीने से ऑडिट चल रहा है, एक ही पेपर है फाइल में। नहीं सर, वो सारे कंप्यूटर में है। अच्छा, तो कंप्यूटर लेके आओ। कंप्यूटर लेके आया, अभी फाइल खोल के बताओ। नहीं, वो नहीं दिखा सकता। क्यों, क्या हुआ, डिलीट हो गया क्या? नहीं, वो इंटरनेट नहीं है। फाइल से इंटरनेट का क्या कनेक्शन? नहीं, वो क्लाउड में स्टोर्ड है। दंग रह गया, क्योंकि उस हफ्ते बेंगलोर में जोर की बारिश। क्या पता नोटिस जब तक आए वो क्लाउड बारिश में कहां से कहां चला जाए। हैं? मैं तो पुराने ख्यालात का हूं, हैं? अभी भी बुक लेके घूमता हूं, ऑनलाइन कुछ नहीं करते। तो देयरफॉर प्लीज बेयर इन माइंड, मेक श्योर यू हैव डॉक्यूमेंटेशन। हर टैक्स पोजीशन का प्लीज मेंटेन डॉक्यूमेंटेशन, व्हाट यू आर सेइंग, व्हाई यू आर सेइंग, बिकॉज अल्टीमेटली यू शुड हैव एन एक्सप्लेनेशन। कोई ये नहीं कहता कि एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। सर मैंने तो सोचा कि रिवर्स चार्ज लायबिलिटी पुराना अभी भर सकते हैं, रिवर्स चार्ज लायबिलिटी 17, 18, 18, 19 का जीएसटी रिवर्स चार्ज लायबिलिटी जो मेरा था मैंने 20-21 में भर दिया, तुरंत क्रेडिट भी ले लिया। नो, हाउ यू कैन टेक द क्रेडिट? नहीं सर, 16(4) में कहता है कि इनवॉइस के डेट से सितंबर तक देखना होगा। कहां है इनवॉइस? नहीं, तुमको चाहिए कि 31(3)(f) के अंडर में सेल्फ इनवॉइस बनाओ। सर ऐसा नहीं है कि मैंने सेल्फ इनवॉइस बना दिया और टैक्स जमा करना भूल गया, वो भी नहीं बनाया सर। इनवॉइस ना बनाने का 10,000 रुपए ले लो तो ये क्रेडिट तो मेरा बच गया। तो देयरफॉर हर इस पोजीशन का एक इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। ऐसे कोई नहीं है कि सारे जो इंटरप्रिटेशन है वो किसी को मानना चाहिए। मैं तो सेटिस्फाइड हूं, आई एम सेटिस्फाइड विद द इंटरप्रिटेशन कि इट इज नॉट लायबल टू टैक्स, लेकिन डिस्क्लोज करना चाहिए। टेबल 4, टेबल 5, एंटायर टीबी मस्ट बी इन 3B। अरे ये नॉन टैक्सेबल को लेकर के क्यों? अभी जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन दो उतना ज्यादा सवाल आएंगे। नहीं, जितना इंफॉर्मेशन दो सवाल तो उतना ही आना है, लेकिन द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द अदर साइड। यू हैव टू वेट। इनपुट क्रेडिट की तो बात करनी ही चाहिए। इनपुट क्रेडिट अगर 2A से मैच नहीं होता अक्टूबर 19 से पहले तो क्या करें? एज लॉन्ग एज यू आर कॉन्फिडेंट, your supplier is not an absconder. If you are confident कि आपका supplier absconder नहीं है, you have a 100% fit case. 7 years later, not today, you will get notice. You will get notice because he is not an absconder. तो कोई पूछ रहा था, सर वो पार्टी तो जमा नहीं किया, he has GST 1 में 19-20 हो गया, तो that I can understand, he has not paid the tax. क्या करे? तो क्लाइंट ने बताया, सर मैंने इसका हल निकाल लिया। क्या निकाल लिया? उसको एक जबरदस्त परचेस ऑर्डर दे दिया और परचेस करवाया, सारा सप्लाई ले लिया, अभी पेमेंट रोक लिया उसका। तो therefore please bear in mind, hold back payments, it is not illegal. So please identify your transaction, क्योंकि what is important is notice जब दे रहे होते हैं, you be very careful about कि क्या कैसे सवाल पूछा जा रहा है।
सवाल जो पूछ रहा है, उनके सवाल से पता चलता है कि उस कुएं में पानी कितना गहरा है। हमारे बिजनेस के बारे में जानकारी किस हद तक है, पूछने वाले सवाल से पता चलता है। 1, 2A, 3B, 2B ये सारे डिटेल दो अगर कहते हैं तो कभी कभार स्ट्रेटेजी के तौर पे अच्छा है कि 2 कार्टून डिटेल्स सबमिट कर दे, तो 3 महीने तो वैसे ही निकल जाता है। अगर वो सारे डिटेल्स उनको पता है तो देन यू हैव टू बी केयरफुल व्हाट इंफॉर्मेशन यू नीड टू प्रोवाइड। देयर इज नो रिकमेंडेशन। इफ देयर इज अ मिस्टेक, फ्रेंड्स प्लीज कीप इन माइंड, इफ अगर मिस्टेक हुआ है तो करेक्ट इट। डोंट अवॉइड मिस्टेक बिकॉज इट विल ओनली मल्टीप्लाई, इट विल ओनली मल्टीप्लाई। क्योंकि नोटिस तो बहुत सारे आने वाले हैं। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए रजिस्ट्रेशन का जरूरत है। टेम्पल देखा, एक टेम्पल जूते रखने का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो मंथली लाख रुपए दे रहा है। इट इज नॉट रिलीजियस एक्टिविटी, सो देयरफॉर प्लीज बी वेरी केयरफुल। नोबडी इज बियॉन्ड द रीच ऑफ GST law. We have to identify. Take a tax position, document it. 3 points only to keep in mind. We have to recognize that it is based on which section. You cannot answer without a section. एक हॉस्पिटल है जहां पे इन पेशेंट के बिल पे GST नहीं है बिकॉज इट इज exempt फ्रॉम टैक्स। पता चला कि उनके इन पेशेंट्स को जो दवा दी गई है वो MRP पे बिल हो गई। MRP पे बिल होने का मतलब है कि आउटपुट टैक्स इज इंक्लूडेड इन दी MRP। एक हाथ हम कह रहे हैं कि एग्जेम्प्ट है, दूसरे हाथ इट इज चार्ज विद एन आउटपुट टैक्स। तो 76 अंडर सेक्शन 76 टैक्स के नाम से अगर कोई रकम कलेक्ट हो जाती है उसको रिकवर करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है एंड इक्वल पेनल्टी विथ इंटरेस्ट। सो देयरफॉर वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दिस ट्रांजैक्शन इज applicable as far as GST is concerned. Notices will come. The trouble is not that notices will come. The trouble is that we may not have answers to those notifications, to those notices. I thank all Gujarat Federation of Tax Consultants, all members for your interest in this topic, because I believe this is an area that is going to occupy center stage in all our offices. And I wish all of you quickly get into this area, because this field of GST is not going to wait for people. It is going to take over our offices, and I'm sure our members are all equipped to handle this. Thank you all very much. See, which section? Which section? See, 16(2) has been introduced only in this budget. मतलब पीछे का साफ. As long as you are confident that your supplies are not bogus, you have nothing to fear. Polite but very with clarity give a reply. Although this allegation is made against the supplier, our inward supplies are bona fide. There is no occasion for entertaining any reversal. Clarity के साथ. Please don't hesitate. Sir, one question. Please, sir. If a dealer providing a main service, as you say that a temple providing a street heating service with a contractor, there is a main objective is providing the religious service. It is a ancillary service. Right, sir. It is GST applicable in that. And second question, if a GTA is providing a goods transport service, and the same time he is providing the loading and unloading. The loading and unloading money providing to which is their main objective. This business is not the unloading. So whether GST is applicable? In the temple example, registration is applicable. In the temple example, registration is applicable, and then the person paying the rental and the person visiting the temple are two different. So therefore, the payment received by the temple trust from this shoe contractor is taxable. In the case of GTA, if loading unloading service is always provided to a customer for taking transportation activity, then necessarily it is incidental composite supply.
no forward charge applicable. If loading and unloading is a separate service to anybody's vehicle, which is rarely the case, it will be a separate service. But if it is to my customer where I am providing transportation and I am providing loading unloading charges extra, it is both composite supply, entirely it will be under reverse charge if it is 5% or forward charge if it is 12%. Section 8, composite supply, 2 subsection 30. Yes, sir. Yes. No challenge. Correct. The registered person does not have a policy of maintaining creditor's aging report. The registered person does not have a policy of maintaining creditor's aging report. What is my responsibility? Press release dated 3rd of July 2019 in para 2H has told the auditor's responsibility is to do the reconciliation. Therefore, the extent of my review has been affected adversely by this press release. Sir? Yes, yes. Sir, in my audit report, though, I have 3 main points to disclaim. First of all, books of accounts are maintained by the legal entity, not by the registered person. 3rd July 2019. प्रेस रिलीज है, कोई नंबर भी नहीं है. अच्छी बात. वेबसाइट पे, CBIC के वेबसाइट पे. So first is books of accounts are not maintained by the registered person. It is maintained by the person. First point. Second point, I have only followed sampling method of verification. Second. Third aspect is press release dated 3rd July 2019 has limited the extent of my review. बाकी सब whatever I will say. Rule 37 डॉक्यूमेंट नहीं है. 16.2 कंडीशंस सामने वाले ने बोल दिया कि वो गारंटी दे रहा है, ठीक है. 16.2 के कंडीशन कि सारे बिल्स तुम्हारे हवाले है. All the goods and services received, you paid the supplier within 180 days. So therefore these are matters to be represented by the registered person. ब्याज तो किसी ने जमा नहीं किया. Interest, registered person has represented that interest is not applicable due to the retrospective amendment decision taken by the 39th GST Council 14th March 2020. We have to make a disclosure. ये disclose करेंगे कि हम कुछ किया ही नहीं. Yes, sir. Any other questions? All right, sir. Over to you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. We thank Mr. Spear's response. Thank you very much indeed, sir, for your enlightening talk. On this occasion, we would like to felicitate the committee members for the hard work and dedication at the hands of our eminent speaker, C.A. Jatin Christopher, sir. I request C.A. Jatin Christopher, sir, to kindly come forward to felicitate our committee members in this section as I call out their names. The committee members are Advocate Shatin Lal Thakkar, Vice President, AGFTC. Advocate Shatin Lal Thakkar, VP, AGFTC. Followed by C.A. Sridhar Shah, Committee Member, ITBA. Followed by Advocate Ramesh Trivedi, Joint Secretary, AGFTC. And Advocate Rakesh Thakkar, Co-opted Member, AGFTC. Thank you, sir. I now request the dignitaries on the dais to kindly pose for the group photograph.
As we come to the end of the second technical session on GST and taxpayers' responses, we will now break for tea for 10 minutes and then return to the auditorium for the brain trust session. Thank you.